plain reading नहीं करना. Understand this, reading and comprehension, right? Ace it in your exam. Let's get started. My name is Juhi Narula. Then you work on accuracy and then you work on speed. So don't haywire with the entire structure. So don't focus. वो आपको जो desired result exam में आप aspire कर रहे हैं वो नहीं देने वाला. Are very good with the fundamentals. They know the concepts. They do well when in the class. They solve the TPPs correctly. Hi, my dear students. I hope you guys are doing well. So there was a common request coming that can we have a detailed plan as to how to prepare for verbal ability section of GMAT, and here we are. So in this detailed video, we are going to talk about that how should you prepare effectively for the verbal ability section so that you are able to ace it in your exam. Let's get started. My name is Juhi Narula. So, see, when we start preparing for any competitive exam, the first important thing is to know the battlefield, right? You need to understand what is the expectation of the exam, what is the fabric of GMAT, and once you're clear with the fabric of the exam, then you can plan your preparation accordingly. So, let's take a look at the structure of the paper. So, you have reading comprehension and critical reasoning. Thanks to the focus edition, sentence correction is no more there, which is a huge sigh of relief for the aspirants, right? So there is no sentence correction, no grammatical testing. So the heavy focus is on logic, structure, and meaning. So there are a lot of doubts that come to us that, ma'am, we do not have a solid English medium background or we are not very familiar with the language. So understand this, that the test is of logic. So once it is rightly established in your mind, you will be able to sail through. Trust me on this, right? So your goal is not speed first. So always understand, until and unless you have a solid fundamentals, you have a strong foundation, you are strategically sound, then you work on accuracy and then you work on speed. So don't haywire with the entire structure. So don't focus too much on the speed right in the beginning. It will ruin your preparation. It will put undue pressure, and that's exactly what we would not want, right? So your goal should be accuracy plus reasoning discipline, right? So understand this, that I always say to my students that no matter if you are doubtful about your skill set, but if you are consistent, if you are disciplined, if you are preparing in the right direction, you will be able to ace any competitive exam, right? But what is really important is to have that mindset that you want to get better every day, and don't just get fixated on the result. Rather, it's really important to work aggressively on the process, right? जितना strong आपका process रहेगा उतना effective results आएंगे. Weak process है, directionless preparation है, तो आप कितनी कोशिश कर लीजिए, result आपके favor में नहीं रहता है, right? चलिए, सो नाउ वी नो द स्ट्रक्चर. तो हम क्या कर रहे हैं, जो अपनी बीए की प्रेपरेशन है उसको 4 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं, राइट? तो जो पहला फेज है दैट इज बिल्डिंग फाउंडेशन, लाइक आई वाज टेलिंग यू, राइट? सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो जाएं, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. वंस इट इज डन, देन वी कैन मूव टू द सेकेंड फेज वेयर वी वर्क ऑन स्ट्रैटेजी, राइट? वेयर वी लर्न द राइट अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चंस. आप अप्रोच के बिना काम मत करिए. मैं हमेशा कहती हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेसफुल होने के लिए आपका एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन होना जरूरी है, राइट? तो स्ट्रैटेजी आपको सीखना जरूरी है. रैंडम क्वेश्चंस मत करिए, राइट? आज 2 सही हो जाएंगे, अगले दिन 1 भी सही नहीं होगा, किसी दिन 3 हो जाएंगे, बट वो आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट एग्जाम में आप एस्पायर कर रहे हैं वो नहीं देने वाला. एक बार आपकी स्ट्रैटेजी सॉर्ट हो जाती है तो फिर आप एक्यूरेसी पे काम करिए और फिर स्पीड पे काम करिए, राइट? ये एक्चुअली फ्लो होता है. तो जो हमारा पहला स्टेप रहेगा वही रहेगा फेज 1 में कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. दैट मीन्स वी बिकम familiar with the language, we develop that reading temperament so that if you encounter a new text, it should not sound intimidating for you, right? So learn each question type deeply in the second phase where you know the strategy, you know how to approach the question, what is the logic behind the question, what is being tested, how can I eliminate the incorrect answer choices, how do I identify what is the thought process that I should apply while I solve this particular type. So in such detail, you should understand the question types, right? And learn the strategy to crack the questions. Then timed practice is really important, plus error correction. That's what we are going to do in phase 3. तो एक बार आपको strategically समझ में आ गया तो आप टाइम का प्रेशर लेना शुरू कर सकते हैं. और वहां पर जो जो आप गलतियां कर रहे हैं उसको एक एक्टिव एरर लॉग बनाएंगे. आई विल टॉक अबाउट ईच फेज इन डिटेल. एंड देन आप वो गलतियां आइडेंटिफाई करके विल वर्क ऑन द वीक एरियाज, राइट? जैसे हम स्वॉट एनालिसिस नहीं करते, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड
थ्रेट्स। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी वीकनेस है, क्या थ्रेट है, कहाँ आपका स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रह रहा है और कौन से ऐसे डोमेन्स हैं जिसमें आप पहले ही बढ़िया करना है। यू जस्ट नीड टू इंश्योर दैट you sustain that particular performance in the exam, right? And then the last phase of preparation would be focusing on test readiness. तो जब आपको इसी एग्जाम में अच्छा करना है, so it's of course really important to be very solid with the concepts, right? Very very crucial, important. But what is really equally important, if not more, but equally important, I would say, is to know the test taking strategies. So we see so many aspirants are very good with the fundamentals. They know the concepts, they do well when in the class, they solve the TPPs correctly, they have very good accuracy, but when it comes to the exam, they are not able to handle that particular pressure, they are not able to take that stress, the paper becomes overwhelming for them. तो वही आपको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, स्ट्रेस हैंडल करना आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, क्वेश्चंस को किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, ये जजमेंट एस्टैब्लिश हो जानी चाहिए। तो टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज को आप हल्के में मत लीजिएगा, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी आपकी सॉलिड टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज होंगी, जितने आपने मॉक टेस्ट देके उसका एनालिसिस करा होगा, उतना एग्जाम आपके लिए कन्वीनियंट होता जाएगा। और अगर आप बिना मॉक्स दिए, बिना एनालिसिस किए, बिना स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट डेवलप किए पेपर देने चले जाएंगे, तो क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आते होंगे, पर फिर भी आप डिजायर्ड परफॉर्मेंस नहीं अचीव कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, बैलेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट्स एंड टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज, बोथ थिंग्स आर इक्वली क्रूशियल। नाउ जब हम फेज 1 की बात करते हैं, जहां पे हम फाउंडेशन बिल्डिंग कर रहे हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ जीमैट थिंक्स, नॉट हाउ इंग्लिश वर्क्स। दिस इज द पॉइंट आई वाज एक्सप्लेनिंग टू यू राइट इन द बिगनिंग, राइट? सो यू हैव टू डेवलप दैट लॉजिकल रीडिंग एंड दैट इज नॉन नेगोशिएबल। तो ऐसा plain reading nahi karna. Understand this, reading and comprehension, right? So you have to understand what is the passage all about. So if you will just try to focus too much on any new word and you get intimidated, oh my god, what is this word, I do not know the meaning, I'll not be able to sail through, that entirely creates more problems for you rather than giving you any help, right? So don't try to just read too fast. There are students who would just want to finish off with the reading, so eventually what will happen, when you will come to the questions, you will have to read the entire passage again, and what is the use? Then you're wasting time, right? So GMAT rewards identifying claims. Identify that what is the end goal the author is trying to establish, what is the conclusion, what is the claim of discussion, what is the supporting evidence to validate it. If the author is trying to reach to a conclusion, the author will definitely try to give you some examples, some stories, some experiments, some detail to validate that particular claim. So how is that claim interlinked with the evidence that you need to judge, that you need to understand, that you need to extract, that you need to evaluate? Then what are the hidden assumptions, what is the intent of the author, right? तो आप कोई आरसी लिखा जा रहा है, कोई पैसेज आपको दिया जा रहा है पढ़ने के लिए, तो ऑथर का कोई इंटेंट तो है, वही आपको डिकोड करने की कोशिश करनी है। Now start reading with a pen mindset. So what is being claimed, why it is being claimed, क्या बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, and what is assumed but not stated, right? तो implicit क्या है, hidden क्या है, जो author मान रहा है। तो assumption क्या होता है? Assumption is something which is hidden, right? Implicit, something which is not directly provided, but in order to validate or give continuity to the idea, you have to take certain assumptions into consideration, right? So what, वाई, हाउ, ये क्वेश्चंस आपको डिकोड करने हैं व्हाइल यू आर रीडिंग, राइट? तो आर्ग्यूमेंट अवेयरनेस होनी जरूरी है। अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, द सेम चैनल इन विच यू आर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, आपको कुछ पुरानी वीडियोस में क्रिटिकल रीजनिंग के कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स मिलेंगे, राइट? पैटर्न ढूंढना, तो वो पैटर्न्स में मैंने आपको बहुत सारे कॉजल पैटर्न दिया है, कॉज एंड इफेक्ट का पैटर्न है, उसमें प्लानिंग पैटर्न है, सैम्पलिंग पैटर्न है, एनालॉजी पैटर्न है। तो वो पैटर्न से ना आपको आर्ग्यूमेंट को पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। इट्स देयर ऑन द सेम चैनल, जस्ट यू हैव टू सर्च द वीडियो। एक बार पैटर्न पकड़ लोगे तो आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे क्रिटिकल रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट होते हैं। और एक बार आपको आर्ग्यूमेंट्स समझ में आ गए तो पूरा प्रोसेस ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग है वो बहुत एक्सटेंड तक सिंप्लीफाई हो जाता है। तो कंक्लूजन क्या होता है, प्रीमाइज क्या है, अजम्पशन क्या है, गैप क्या है, राइट? ये सारी समझ आपको होनी जरूरी है। तो वी हैव CRK वेरी नाइस वीडियोस डन, I recorded exclusively for the students who are trying to understand CR right from the scratch. So do watch the videos. चलिए, सो अब फेज 1 में क्या करना है, आपको 20 to 30 मिनट्स पर डे रीडिंग
करनी है। रीडिंग करने से हमारा टेम्परामेंट बिल्ड हो जाएगा और इवेंचुअली हमें वो हेल्प करेगा जब हम आरसीज को सॉल्व करेंगे। तो बिजनेस आर्टिकल्स पढ़िए, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू स्टाइल के, साइंस सोशल साइंस के एसेज पढ़िए, बहुत ज़्यादा टेक्निकली मत जाइए, राइट, क्योंकि बहुत इंटेंस टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देने वाले हैं वो। जब आपने आर्टिकल को रीड कर लिया तो चाहे आप 15 मिनट के लिए रीड करिए और बाकी 15 मिनट आप समरी क्रिएट करने के लिए रख दीजिए। देखिए कि मेन आइडिया क्या था। मेन आइडिया मतलब व्हाट इज द ऑथर टॉकिंग अबाउट, ऑथर्स टोन कैसे बात कर रहा है और पर्पस क्यों लिखा गया है, जो मैं आपको अभी कुछ समय पहले, कुछ मिनट पहले समझाने की कोशिश कर रही थी। व्हाट, हाउ एंड व्हाई। तो आपको उद्देश्य समझ में आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे ना, पैसेज की ओवरऑल होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाएंगे, जो पैसेज को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है। तो आपको जीमैट फैमिलियरिटी को बिल्ड करना है। अनटाइम्ड आरसी करिए, शुरू में टाइम का प्रेशर मत लीजिए, राइट, या फिर आप सीआर के कुछ सवाल उठाना शुरू करिए ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा क्वेश्चन का नेचर कैसा है, क्वेश्चंस कैसे आपको फील करवाते हैं, राइट, व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, व्हाट इज द फ्लेवर, ये आपको समझने की जरूरत है, राइट। अब आपने सपोज एक क्वेश्चन गलत कर दिया, कोई बात नहीं, तो शुरू में ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं लेना कि मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। आप ये समझिए कि आपकी जो इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस थी उनके पीछे का रीजनिंग क्या है और जो करेक्ट आंसर है उसके पीछे की रीजनिंग क्या है। तो इवैल्यूएशन बहुत होना जरूरी है कि व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट एंड व्हाई द अदर आंसर चॉइसेस आर रॉन्ग। तो यूजुअली हमारा फोकस रहता है कि करेक्ट को वैलिडेट करने, जबकि जीमैट में एस करने के लिए इनकरेक्ट ऑप्शंस की भी आपको रीजनिंग पता होनी चाहिए कि हमने इन ऑप्शंस को सही क्यों नहीं कंसिडर किया, राइट। सो जो आपका फेज 2 रहेगा, ये बेसिकली जब क्रिटिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो ये 7 क्वेश्चन टाइप्स हैं, राइट, इनको अच्छे से समझने की आपको कोशिश करनी है, राइट। ईच क्वेश्चन टाइप अगेन यू विल गेट अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन द सेम चैनल। तो स्ट्रेंथन, वीकनिंग, अजम्पशन, इन्फरेंस, इवैल्यूएट, एक्सप्लेन या रिजॉल्व द पैराडॉक्स और बोल्ड फेस, ये क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो धीरे धीरे एक एक कैटेगरी को पकड़ना शुरू करिए, क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन को मीट करने की कोशिश करिए। जब आप एक स्ट्रेंथनिंग का क्वेश्चन टाइप पकड़ लेते हैं तो स्ट्रेंथनिंग के 20, 25, 30 सवाल जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होते करिए। फिर स्ट्रेंथनिंग आपने कर लिया, कंफर्टेबल हो गए, तो वीकनिंग पे जब आप जा रहे हैं तो स्ट्रेंथनिंग के भले ही 2 क्वेश्चन करें पर स्ट्रेंथनिंग करते रहें। सिमिलरली वीकनिंग के बाद अगर आप अजम्पशन पे जा रहे हैं तो आप स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग का भी एक एक 2-2 सवाल करते रहे। ऐसा ना करें कि एक कैटेगरी करके उसको बिल्कुल छोड़ दिया, राइट। ट्राई टू स्टे कंसिस्टेंट, राइट। सो इफ यू हैव डिसाइडेड दैट ओके आई विल डू 10 क्वेश्चंस, so maybe when in the initially you are doing 10 questions of strengthening, you come to weakening, you do 9 questions of weakening, do 1 question of strengthening. When you come to assumptions, you do 8 questions of assumption, 1 of strengthening, 1 of weakening, right. Inference पे आ गए, do 8 of maybe 7 of VA या 8 अगर आपने inference के questions कर लिए तो मे बी एक दिन एक strengthening कर लिया या weakening कर लिया और एक assumption कर लिया। इस तरह से कोशिश करिए कि मेजॉरिटी में जो क्वेश्चन टाइप आप डील कर रहे हैं 7 सवाल उसके करते रहे और बाकी की एक एक क्वेश्चन को टच में रहे हैं। ऐसा ना करें कि बिल्कुल ही स्ट्रेंथनिंग कर रहा था और जब तक बोल्ड फेस तक आए स्ट्रेंथनिंग ही कमजोर पड़ गया। दिस शुड नॉट हैपन। नाउ देन जब हम आते हैं आइडेंटिफाई कंक्लूजन, वही मैं आपको कह रही थी कि फाउंडेशन सीआर की वीडियोस पैटर्न्स की देखिएगा, क्या क्लेम एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, वैलिडेट करने की कैसे कोशिश करी जा रही है, गैप है, कोई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है जो अजम्पशन ब्रिज करने की कोशिश कर रहा है, राइट। और कोशिश करिए कि आप अपने दिमाग में एक ऑप्शन रखें और बिना एक आंसर को प्रिडिक्ट किए कोशिश करिए कि ऑप्शंस ना देखें, राइट। होता क्या है कि हम सीधा आर्ग्यूमेंट पढ़ते हैं और ऑप्शंस पे अटैक कर देते हैं तो कई बार हमें इनकरेक्ट आंसर जो है स्वे कर देती है। सो यू हैव टू लर्न द स्ट्रैटेजीज। तो जो आपका सीआर रूटीन रहेगा फेज 2 में वो 8 से 10 सीआर क्वेश्चन जो मैं आपको कुछ समय पहले बता रही थी। इनिशियली अनटाइम्ड रखिए, कंक्लूजन क्या है, अजम्पशन क्या है, करेक्ट आंसर क्यों करेक्ट है, इनकरेक्ट आंसर चॉइस में क्या समस्या है, कौन से ट्रैप में आप फंसे, उस ट्रैप को कैसे ओवरकम कर सकते थे, क्या क्वेश्चन सही से पढ़ने से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी, इफेक्टिव एलिमिनेशन हमें हेल्प कर सकता था, प्रिडिक्शन अगर कर लेते तो एलिमिनेशन इफेक्टिव हो जाता। ये आप जब ऑन द गो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप सीख पाएंगे, राइट। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो ये 6 मेजर क्वेश्चन टाइप्स हैं। तो ये हर क्वेश्चन टाइप को आपको समझना जरूरी है। मेन आइडिया क्या पूछ रहा है कि भाई क्या बात हो रही है, प्राइमरी पर्पस क्यों, पूरा पैसेज क्यों लिखा, लॉजिकली आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, ऑथर की टोन कैसी है, हाउ इज द ऑथर गिविंग द आइडिया, इज ही सैड, इज ही एक्साइटेड, इज ही इन अ न्यूट्रल स्टेट while writing the
essay or the article that you have been provided with, right? Strength and weakening, तो एक बार critical reasoning का strengthening weakening का logic समझ में आ गया, तो यहाँ भी आप sail through कर जाएंगे. Then there could be questions dealing with specific details, right? तो जो फेज 2 रहेगा, अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी रहेगी कि मेमोरी पे डिपेंडेंट ना हो. यही आप सोच रहे हैं कि आपको शक्तिमान है, आपने पैराग्राफ एक बार में पढ़ा, आपको सब याद रह जाएगा और उसी के बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. इतना अनरियलिस्टिक गोल है. आरसी की ना हमने अभी रिसेंटली एक सीरीज करी है जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से फाउंडेशन बिल्ड करी है, जिसमें पैसेज को कैसे समझना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके का एलिमिनेशन है. आपको कुछ रिसेंट वीडियोस में दिख जाएगा, तो आप वो आरसी की सीरीज जरूर फॉलो करिएगा. रीसेंट सीरीज है, तो ये आपको टोटल स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगी कि आरसी को कैसे डिकोड करना है. एक मेंटल मैप क्रिएट कर लीजिए. मैपिंग कैसे करनी है, ये भी एक लेक्चर का एजेंडा है कि कैसे पैसेज में फोकस बना के रखें, कॉन्टेक्स्ट कैसे समझें, क्या प्रॉब्लम है, हाउ इज द आर्ग्यूमेंट बीइंग डेवलप्ड, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन. द एंटायर थिंग हैज बीन टॉक्ड अबाउट इन डिटेल. तो जो आपका फेज 2 में डेली आरसी रूटीन रहना चाहिए. आप 45 मिनट से 1 घंटा दीजिए, 2 पैसेज करने की कोशिश करिए, इंगेज करिए. एक ही बार में कोशिश करिए कि आपको एटलीस्ट व्हाट्स हैपनिंग इन द डिस्कशन समझ में आ जाए, स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए पता हो रिविजिट कैसे हो रहा है, कैसे आइडियाज डेवलप हो रहे हैं. तो इस तरीके का आपका टेम्परमेंट डेवलप होना जरूरी है, राइट? तो फेज 3 में आएंगे तो अब टाइम प्रैक्टिस से अब आपने एक फाउंडेशन बिल्ड कर लिया है, क्वेश्चन सॉल्विंग कर लिया है, वैरायटी आपको समझ में आ गई है, डिटेल्स आपने ऑब्जर्व कर लिए. तो नेक्स्ट थिंग इज कि आप अपने लिए एक टाइम्ड काम करें. तो बेसिकली आपको 8 मिनट में एक आरसी सॉल्व हो जाना चाहिए, मोटा मोटा, राइट? और सीआर के क्वेश्चन को 2 मिनट देने. तो ये एक बॉल पार्किंग फिगर रख लीजिए अपने लिए कि लगभग इतना समय पर क्वेश्चन आपको लगना चाहिए. एरर लॉग जरूर मेंटेन करके रखिए. जितना आप फोकस करेंगे ऑन योर मिस्टेक्स, उतना आप इंप्रूव कर पाएंगे. सो कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया, क्यों आंसर आपने गलत पिक किया, सही के पीछे की रीजनिंग क्या थी, क्या कोई आपने अजम्पशन मिस कर दिया, एक्सट्रीम ऑप्शन को पिक कर दिया, स्कोप ऑफ डिस्कशन के बियॉन्ड चले गए, कोई रिसाइकल लैंग्वेज थी उसमें फंस गई. ये जो मैं आउट ऑफ स्कोप रिसाइकल लैंग्वेज बोल रही हूँ, यही रिसेंट वीडियोस में मैंने प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के टूल्स बताए हैं. जरूर देखिएगा वो वीडियो, आपको बहुत हेल्प करेगी. ठीक है? तो इम्प्रूवमेंट रिव्यू करने से आएगा, राइट? तो प्रेपरेशन के साथ जितना स्ट्रॉन्ग एनालिसिस, उतना आपका आगे का रास्ता खुलता जाता है, राइट? फिर वीकली सेक्शनल टेस्ट शुरू करिए, राइट? एकदम से पूरा मॉक मत दीजिए, सेक्शनल से बिगिन करिए. आप हैबिचुअल होने के लिए भी तो आपको समय चाहिए, राइट? तो 2 वर्बल सेक्शनल टेस्ट आप पर वीक दे सकते हो और डीपली एनालिसिस करिए, राइट? 2 से 3 घंटा रिव्यू के लिए जरूर दीजिए कि मैं किसी क्वेश्चन जो मेरा सही हो गया पर फिर भी मैं 2 आंसर चॉइसेस में फंसी हुई थी, तो गो बैक टू दैट क्वेश्चन. जितना एनालिसिस सॉलिड होगा, जितनी स्ट्रॉन्ग एरर लॉग होगी, उतनी आपकी प्रेपरेशन सॉलिड होती जाएगी, राइट? सो अब जो आपका फेज 4 है वो फाइनल पॉलिशिंग का, मतलब अब आप एग्जाम की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट? तो अपने गलत क्वेश्चंस को रीडू करिए, अजम्पशन और वीकन के पैटर्न्स रिवाइज करिए. मैंने आपको अभी बोला है इनिशियल वीडियोस में आपको क्रिटिकल रीजनिंग के पैटर्न्स मिलेंगे, जरूर देखिएगा. मेन आइडिया और इन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है आरसी का, तो इस पर थोड़ा सा ज्यादा आपको फोकस करना है. डिसीजन मेकिंग करनी है कि कहाँ आपको एक लॉजिकल गेस लेना है, किस क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा समय देना है. तो ये सारा टेम्परामेंट स्ट्रैटेजी आपकी तभी काम करेगी जब आप पढ़ाई करेंगे और यू विल बी practically working more rather than being too theoretical, right? कोई नया मटेरियल फाइनल फेज में यूजुअली हम सजेस्ट करते नहीं है पिक करने के लिए. कोई रैंडम सोर्सेज मत उठाइए, राइट? ट्राइड एंड ट्रस्टेड तरीके से प्रिपरेशन आगे बढ़नी चाहिए. वो कैब को लेकर ज्यादा परेशान नहीं हो ना, कॉन्टेक्चुअली मीनिंग दे देते हैं. उनको भी पता है कि आपका इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, आपका लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट है, राइट? तो हाई क्वालिटी मटेरियल रखिए, जी मैट फोकस क्वेश्चंस पे काम करिए, जो ऑफिशियल गाइड है उसको जरूर कंप्लीट करिए. एरर लॉग इज रियली क्रूशल, उसको हल्के में मत लीजिए. आप ज्यादा सवाल करते रहेंगे बिना एवेल्युएशन के, वो पर्पसलेस एक्सरसाइज है, आउटपुट नहीं मिलेगा. और अपनी पुरानी गलतियों को असेस करते रहिए बजाय अनगिनत नए सवाल करने के. So GMAT verbal is not an English fluency test. I'm reinstating this idea. It is not your vocabulary test. It is not a speed test. It is a reasoning discipline test. It's a trap detection test and it is a decision making test, right? So I hope I have explained holistically how to go about with your VA preparation and I'm sure you're going to follow these suggestions. Do check out the channel for the other videos
videos that have been suggested, you'll get really good understanding of the fundamentals, and that will help you extremely to ace your GMAT VA section. God bless you. Vijay Bhav. Take very good care of yourself.